Hello students, wish you a blessed day today. So students, this is your class 6 and here is your class of history. So in the last class we have discussed about the Mesolithic age. In this chapter the first farmer and herders. So this is your part 2 that here we have discussed I have discussed that about your Neolithic age or New Stone Age. So students, as we have learned earlier, the Stone Age is divided into three periods, that is the Paleolithic period, Mesolithic period and Neolithic period. So in the last class we have completed Paleolithic period and Mesolithic period. So today I have discussed here Neolithic period. So let's get started with Neolithic period. It is also known as Neolithic age or New Stone Age. So in this chapter I have discussed here about the lifestyle of Neolithic people at that time. So here I have discussed that farming and herding of at that time, community life, tools means at that time what are the tools used by them, pot making, the uses of pot and how they started this pot making, and invention of the wheel, religion, disposal of the dead that is megaliths, the Neolithic settlement in the Indian subcontinent. So students, I have discussed here details of all these things. So let's get started. So first point is farming and herding. So farming and herding means here in this Neolithic period, people of this period, they have started like a food producer at first in the Paleolithic period, and in the Paleolithic period they were hunter gatherer, and in the Mesolithic period they were known as the food gatherer, and here that is in the Neolithic period they became food producer. So इसका मतलब क्या है, पैलेलिथिक पीरियड में वो जो पीपल थे वो क्या कर रहे थे, वो फूड हंटर गैदरर थे, मीन्स वो जगह जगह घूम घूम के, और नोमैडिक भी थे, नोमैडिक पीपल थे, तो जगह जगह घूम घूम के वो खाली हंटिंग करना जानते थे और ज़्यादा कुछ नहीं जानते थे. तो धीरे धीरे जैसे डे बाय डे क्या हुआ, वो धीरे धीरे बहुत कुछ जानने लग गए और मेसोलिथिक पीरियड में वो फूड गैदरर बने. फूड गैदरर मीन्स फूड को कलेक्शन करके कहीं पर रखना जाने और किस तरह से रख के उसको खाएंगे या फिर नेक्स्ट फ्यूचर के लिए वो जमा के रखेंगे, वो सब सीख गए. वो उसको बोलते हैं फूड गैदरर. तो मेसोलिथिक पीरियड में वो फूड गैदरर बन चुके थे. तो ये जो न्यूलिथिक एज है या न्यूलिथिक पीरियड है, इसमें वो फूड प्रोड्यूसर बने. फूड प्रोड्यूसर मीन्स उनको ये पता चला कि कैसे वो फूड प्रोड्यूस करना जानेंगे. इन द लास्ट क्लास आई हैव आल्सो डिस्कस्ड दैट वो जो फूड प्रोड्यूसर मीन्स वो जो सीड और प्लांट के बीच में जो मैजिक रिलेशन है वो समझ पाए थे. और आफ्टर दैट वो क्या न्यूलिथिक पीरियड में फूड प्रोड्यूसर बन पाए. मीन्स किस तरह से वो फूड प्रोड्यूस कर पाएंगे, मतलब सीड्स को किस तरह से पॉलन करके किस तरह से उसमें फूड प्लांट हो गया और कैसे वो अच्छा क्वालिटी का फूड प्रोड्यूस कर पाएंगे, वो सब वो सीख चुके थे. और क्या वो कैटल को रखना जानते थे, किस तरह से वो डोमेस्टिकेशन करेंगे. फार्मिंग एंड हर्डिंग के लिए डोमेस्टिकेशन बहुत ज़रूरी है. तो डोमेस्टिकेशन किस तरह से करेंगे और किस डोमेस्टिकेशन के लिए क्या क्या वो एनिमल्स को यूज करेंगे, क्या क्या एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर पाएंगे, वो सब वो सीखे थे. मतलब क्या क्या एनिमल्स को डोमेस्टिकेट कर पाएंगे और ये जो है कहाँ कहाँ ये सब डोमेस्टिकेशन स्टार्ट हुआ था. तो according to some archaeologists, they have found remains of wheat and lentils at Chirand. So look students, here I have marked wheat and lentils. It is found in Chirand, that is in Bihar.
and horse gram in Tekalakota. So horse gram in Tekalakota in this next this is your horse gram. So but student, so look, this is your Tekalakota. So Tekalakota what horse gram is found in Tekalakota. Okay, so next here wheat and lentils were found in Chiran, that is in Bihar. Then cattle pen also found in that is Koldhiwa, and bones of cattle, sheep and goats also found in the same place, that is Tekalakota. Okay, so here next the presence of charcoal also found in some soils. That what charcoal found means it suggests that some places clearing for forest or forest by fire. So as we know क्या जब कुछ लकड़ी जब जल जाता है तो क्या होता है, वहाँ से चारकोल मिलता है. तो चारकोल जो है, इससे ये यहाँ पे भी चारकोल मिला था, तो इससे ये पता चलता है कि चारकोल जो मिला था मतलब वहाँ पे क्या हुआ होगा, जंगल को जला दिया गया होगा, या कभी कुछ हुआ होगा कि फायर लग गया है जंगल में, तो क्या हुआ, वहाँ से चारकोल इसीलिए मिला है. तो ये देखो स्टूडेंट्स, लुक डोमेस्टिकेशन हियर it is the how changes is here. Look here, it is the what, this is your wild goats, and here is the domestic goat. So find out the difference between these two types of goats. Wild goats, they have a horn, larger horns than the domestic goats. Okay, so noticed that how it is different from the wild varieties, how domesticated animals different from the wild varieties animals. So the domesticated animals have smaller teeth and horns. Okay, so in this way people learned to domesticate animals. Those have mild natured animals, they started them domesticated. Okay, and kept alive till the need of the food arose. So at that time, remains of animal bones and shelters found in the Neolithic sites. This tells us about the Neolithic people. So next is your implications. Implications means how the Neolithic people improved themselves, and from implications suggest that growing crops assured man of the continuous supply of food. Okay, so when they learned the producing of food, then it assured man to continuous supply of foods. Okay, so at this time also the man hunted animals and rearing of animals, but and it helps them to supply of meat, milk, and hides. He was at last free from continuous search of foods. Means now they don't need to hunt animals all the time. Okay, so as they started rearing animals, they can get meat, milk continuously. तो इसका मतलब है जब वो डोमेस्टिकेशन कर रहे थे, रियरिंग करना सीख गए थे, मतलब वो जो एनिमल्स को रखना जान गए थे कि किस तरह से रखना है एनिमल्स को घर में डोमेस्टिकेट करके, तो इससे क्या उनको फ़ायदा हो रहा था कि उनको कंटिन्यूसली मीट और मिल्क जैसे हमें जो भी एनिमल्स से हमें चाहिए वो सब कंटिन्यूसली मिलने लगा, और उनको हंटिंग करने के लिए ज़रूरत नहीं हुआ क्यों, तो इसीलिए वो इस तरह से ये सब इम्प्लीकेशन है. और क्या है, परमानेंट सेटलमेंट. परमानेंट सेटलमेंट मीन्स
permanent settlement began to be established and community life began to take place. मीन्स ये जो जैसे कि वो फूड सप्लाई करने के लिए या फूड प्रोड्यूस करने के लिए क्या करने लगे, फार्मिंग करने लगे। तो फार्मिंग करने के लिए कहीं एक जगह में रहना उनको ज़रूरी हो गया, और एनिमल्स भी रेयरिंग कर रहे थे तो उनको कहीं एक जगह में रहना ज़रूरी हो गया। तो इसीलिए वो फिर सोचने लगे कि कहीं पे सेटलमेंट उनको चाहिए, एक जगह में रहेंगे तो सेटलमेंट कहाँ पे रहेंगे, नियर एनी रिवर साइड। तो वो इस जगह ऐसे जगह को ढूंढने लगे कि कहाँ पे उनको सुविधा होगा कि वो फूड प्रोडक्शन जो करेंगे, फार्मिंग करेंगे, उनको सब कुछ सुविधा होना चाहिए। सो इस तरह से वो उनका परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हो गया। और वहाँ पे जब परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट हो गया मतलब वो एक विलेज बना के रहने लगे, एक सब कोई एक साथ रहने लगे। तो उसको बोलते हैं हम कम्युनिटी लाइफ। Community life means a village life consisted of a few closely built houses. means जैसे कि अभी भी हम लोग कहीं रह रहे हैं तो एक जगह में कहीं पर रह रहे हैं, टाउन में हो या विलेज में हो, तो सब कुछ क्या घर सबका पास पास में है और क्लोजली है बिल्ट, हाउसेस सब क्लोजली बिल्ट है। तो उस समय भी क्या हुआ था, जैसे कि वो फार्मिंग और हर्डिंग कर रहे थे तो वो सब के लिए सब कोई एक साथ रहने लगे और उसको कम्युनिटी लाइफ बोल के बोला जाता है। तो उसको वो फेंस मतलब साइड में जो बाउंड्री जैसे है वो फेंस भी बना के उसको कवर करके रख रहे थे ताकि वो जो वाइल्ड एनिमल से उनको खतरा ना हो। तो नेक्स्ट है आपका ट्राइब किसको बोला जाता है। द कंसेप्ट ऑफ फैमिलीज केम इनटू बीइंग इन दिस एज and a group of families living and sharing together customs, beliefs and practices was called a tribe. means जो फैमिलीज रह रहे थे कोई भी जगह में तो वो क्या कर रहे थे, कुछ एक कस्टम्स या बिलीफ्स ट्रेडिशंस जैसे होता है वो कुछ उनका ट्रेडिशंस मान के चल रहे थे। जैसे उनका पूजा हो गया, वो कौन सा गॉड को वर्शिप कर रहे हैं वो सब है। तो वो सब कोई एक साथ कर रहे थे। तो वो जो बिलीफ्स है उनका जो प्रैक्टिसेस है उसको बोला जाता है, वो कम्युनिटी लाइफ में ट्राइब बोल के वो बोल रहे थे इसको। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ट्राइब। ओके, सो नेक्स्ट इज योर दैट ये जो एक्टिविटी था फार्मिंग, हेडिंग, गैदरिंग, फिशिंग इन ग्रुप्स, दे डिड these activities in groups. Okay, and they jointly owned natural wealth such as land, forest। ये जो सब है वाटर रिसोर्सेस ये सब उसके पास में ही ये सब कर रहे थे। एंड देयर वाज नो इनइक्वालिटी, उस समय इनइक्वालिटी कुछ नहीं था। मीन्स रिच और पुअर ये सब कुछ नहीं था। डिवीजन ऑफ वर्क मीन्स व्हाट, how they divided their work among themselves। means depending upon the age, then physical strength, wisdom, then sex, that is male or female। okay, so in this way they divided their works। so like that their physical strength, that what men can do or what women can do। so men had occupations such as hunting and plowing and grazing large herds of animals। These things men did at that time। and in case of women just वो क्या कर रहे थे, घर में रह के सब चिल्ड्रंस का जो टेक केयर करना और लाइट एग्रीकल्चरल वर्क या फिर वेविंग ये सब कर रहे थे वुमेन। सो women take care of home and children only and did some light agricultural task। and both men and women they did that what, pot making and then weapons making, ornaments making, they both could do that this type of work। and next is your polished tools। means the tools at that time they used, that they just started polished tools। they started making a polished tools। means वो tools जो भी use कर रहे थे वो polished
करना सीख गए थे, पॉलिश करके उसको अच्छे से शार्प बना रहे थे, जैसे कि उनको और भी ईजी होगा हार्वेस्टिंग के लिए, हंटिंग के लिए, फूड प्रोडक्शन के लिए, वो सब ईजी होगा. तो न्यूलिथिक पीपल्स वे स्किल्ड फार्मर्स नाउ. सो मैन्युफैक्चरिंग अ रेंज ऑफ टूल्स नेसेसरी फॉर द tending, harvesting and processing of crops and food production. तो वो बहुत कुछ टूल्स बनाए थे. नेक्स्ट आई एम गोइंग टू शो यू दैट दिस इज एक्स वो कैसे बनाए थे. देखो जैसे वुड और बोन्स से लगा करके वो शार्प टूल बना रहे थे. एक्स उनको एक्स क्यों बना रहे थे? एक्स से वो क्या कर रहे थे? फॉरेस्ट क्लियरिंग के लिए एक्स उनको हेल्प करता था. इट हेल्प्स टू क्लियर फॉरेस्ट. नेक्स्ट सिकल इज यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग. ओके, look how sickles look. Next, this is hoe is used to what, digging ground. So next is your spindle is used to weaving cloths. And this is a needle, bone needle, that is known as bone needle. It is also used for weaving. So next is your some new tools. I have shown you that sickle, it was used in agriculture to harvest the crops. Here hand mill means it is used to grind seeds by hand. Now also in some home you can find hand mill. ओके, मम्मी लोग जो मसाला पीसते हैं घर में, जैसे पत्थर का एक ठो रहता है, उसको हैंड मिल बोलते हैं. तो उस समय भी उसको ये हैंड मिल यूज किया जा रहा था ताकि वो सीड को ग्राइंड कर सके. और नेक्स्ट इज योर एक्स. हियर इट वाज यूज्ड टू कट ट्रीज एंड वुड. ट्री फॉरेस्ट क्लियरिंग के लिए या ट्रीज को कट करने के लिए ये एक्स वो यूज़ कर रहे थे. नेक्स्ट, इट वाज यूज्ड टू मेक थ्रेड टू वेव क्लॉथ. ये जो स्पिंडल है या बॉन नीडल है, इसके पहले मैं दिखाई थी आप लोग को, तो बॉन नीडल या फिर स्पेंडल, तो ये इसको क्लॉथ वेव करने के लिए हेल्प हो रहा था. नेक्स्ट आपका पॉट, ये जो है ये कुछ पॉट भी बना रहे थे. पॉट बना के पॉटरी वेसल्स जो है ये कुक और स्टोर फूडिंग के लिए यूज़ होता था. पॉट मेकिंग, तो वो किस तरह से पॉट बना रहे थे? पॉट मेकिंग में वो क्या कर रहे थे? सो फर्स्ट दे यूज्ड वाइल्ड ग्रास यूज़ करके उसमें वेट क्ले को अच्छे से लगा रहे थे और उसको ड्राई कर दे रहे थे. कहाँ पे ड्राई कर रहे थे? इन द सन. तो सन में उसको ड्राई कर रहे थे. जब वो सूख जा रहा था बहुत अच्छे से, तो इस तरह से वो पॉट बन जा रहा था. तो ये पॉट से वो कुछ भी ग्रेन्स कुछ स्टोर कर सकते थे, कुछ मिल्क और वाटर भी स्टोर कर सकते थे. जैसे लिक्विड कुछ भी हुआ तो उसको वो स्टोर कर सकते थे. और धीरे धीरे वो क्या किए, वही क्ले जो पॉट है उसको वो बेक करना स्टार्ट भी किए हैं. तो बेक कैसे कर रहे थे? बेक क्ले वेसल्स ऑन फायर में उसको बेक कर रहे थे और उससे वो कुक भी कर पाएंगे. जैसे बेक करने के बाद ही उसको उसमें कुक कर पाएंगे, तो बेक करके उसमें कुक भी कर रहे थे. Later they started baking clay vessels also. So invention of wheel. Now invention of wheels means wheel. It is most remarkable invention of Neolithic man was the wheel. wheel एक बहुत बड़ा इन्वेंशन है उस समय में. ये क्या किया, उनको ट्रांसपोर्ट में हेल्प किया. ट्रांसपोर्ट मीन्स एक जगह से दूसरी जगह कुछ जाने के लिए हेल्प किया, कुछ सामान ले जाने के लिए हेल्प किया. पॉटर्स व्हील इम्प्रूव्ड द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉट्स. देखो व्हील्स को बहुत जगह में बहुत तरीके से यूज किया जाता था. जैसे ट्रांसपोर्टेशन में यूज किया जाता था. कुछ ग्रेन्स हुआ उसको कहीं पे कहीं ले जाना है तो व्हील्स के जरिए उसको एक कार्ट बना के उसके ज़रिए वो कहीं पे ले जा सकते थे. जैसे नेक्स्ट इज़ योर पॉट मेकिंग. पॉट मेकिंग में भी जैसे नीचे व्हील एक रहता है उसको घुमा घुमा के पॉट मेकिंग किया जा रहा था. यू कैन सी दिस इन दिस पिक्चर. नेक्स्ट व्हील इज ऑल्सो यूज्ड इन स्पिनिंग क्लॉथ. ओके,
So this is the invention of will. Now religion means वो उनका क्या बिलीफ था, वो किस तरह से वर्शिप कर रहे थे और किसको किसको वर्शिप कर रहे थे, वो आज हम देखेंगे यहाँ पे. दे वर्शिप्ड वाटर, फायर, रेन एंड थंडर एज ऑल्सो द सन, द अर्थ एंड द स्टार्स ऑल्सो. ये सब वो वर्शिप कर रहे थे, वाटर को, फायर को, रेन, थंडर, ये सब जो नेचुरल है, नेचर से जो मिलता है वो उस सब को वर्शिप कर रहे थे. सन को भी वर्शिप कर रहे थे, अर्थ एंड स्टार्स को भी वर्शिप वो कर रहे थे, पूजा कर रहे थे. देखो इन दिस पिक्चर दे वर्शिप्ड द काव. इन क्यों उस काव को वर्शिप कर रहे हैं? क्योंकि वो थैंकफुलनेस उसको दे रहे थे. क्या क्यों? क्योंकि वो काव से उनको बहुत कुछ मिल रहा था. जैसे अभी भी हम लोग हिंदू धर्म में क्या होता है, हम गाय को पूजा करते हैं, गौ माता बोल के बोलते हैं. तो उनको हम पूजा करते हैं क्यों? क्योंकि गाय से हमें बहुत कुछ मिलता है. गाय हमारी जैसे माता की समान होती है, तो उसको हम पूजा करते हैं. तो उस समय भी वो लोग भी गाय को पूजा कर रहे थे, क्योंकि गाय से उनको बहुत कुछ मिलता था. तो और क्या किसको पूजा कर रहे थे? स्नेक को भी पूजा कर रहे थे इन फियर. तो डर को भगाने के लिए, अपना जो अंदर में डर को भगाने के लिए वो स्नेक को भी पूजा कर रहे थे. नेक्स्ट इज योर डिस्पोजल ऑफ द डेड, दैट इज मेगालिथ. मेगालिथ इज नोन एज द डिस्पोजल ऑफ डेड. So look students, here there are two pictures you can see here. So they often marked burial places. In the last class I have shown you what is the meaning of burial places. जहाँ पे वो लोग जो डेड जो मर जाते थे उनको वो वहाँ पे दफना देते थे या गाड़ देते थे, तो उसको बरियल प्लेसेस बोला जाता है. तो बरियल प्लेसेस जो है वो मार्क्ड, बरियल प्लेसेस को वो किस तरह से मार्क करके रख रहे थे कि ये एक बरियल प्लेसेस है, किस तरह से मार्क करके रख रहे थे? ह्यूज रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ स्टोन्स. मीन्स ये देखो कितना बड़ा बड़ा स्टोन्स है ना, तो वो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ स्टोन से उसको वो मार्क करके रख रहे थे. ऐसे दो ठो रख रहे थे, फिर ऊपर में एक ठो उसका छत के जैसे उसको रख रहे थे. तो ये जो स्टोन्स को बोला जा रहा था मेगालिथ. मेगा मीन्स लार्ज, बहुत बड़ा. तो मेगालिथ इसको बोला जा रहा था. ए नंबर ऑफ मेगालिथ्स हैव बीन फाउंड एट साइट ऑफ आदिचनालुर in South India. I will show you in the picture that where is Adichanallur. You can see in the in your book also in figure number 3.5 some stones edge sites. It is Adichanallur, that is in your South India. So megalith culture of South India is this Adichanallur. So dead, ये जो dead है जिसको buried किया जा रहा था, तो yes students, here is your look students, here is your figure. This is your Adichanallur. Adichanallur is in your South India. So it is a large site found in South India. Here megaliths are found in Adichanallur. So next is your, so here what buried, they buried their dead sometimes in urns. अर्न्स में जो उसको जहाँ पे भी जो लोग मर जा रहे थे उनको वो रख रहे थे, बरीड कर रहे थे. तो उसमें वो क्या दे रहे थे, जैसे कि इन द लास्ट क्लास वी हैव आल्सो लर्नड इन द मेसोलिथिक एज दैट दे बरीड द डेड with ornaments and some food also. And here also in the Neolithic period they also buried this dead with some ornaments, food, and also the also what cremation was also practiced. Cremation means जो दाह करना, जो मर जा रहे थे उनको दाह करना भी उस समय होता था. तो वो जो दाह कर रहे थे मतलब जला दे रहे थे, क्रेमेशन में जब जला दे रहे थे उसमें जो जैसे डस्ट जैसे रहता है, भस्म रहता है, उसको भी उसके साथ वो बरीड कर रहे थे. और वो जो फूड दे रहे थे उसके साथ वो क्या सोच के दे रहे थे कि दे बिलीव दैट लाइफ आफ्टर डेथ
exist. Okay, so next is our Neolithic settlement in the Indian subcontinent. So what are the Neolithic settlement, or where this is your picture from your book I have taken. So look students, you can see some sites of Neolithic or Paleolithic sites. Wait, I am showing you here. Look, Paleolithic sites, Mesolithic sites. Green color is showing the Mesolithic sites, and your purple color triangular is showing your Neolithic sites. डियर स्टूडेंट्स, आप लोग अपना बुक भी एक साथ रखो, वीडियो को पॉज करो और अच्छे से मैच करो बुक में जो फिगर है 3.5 पेज नंबर 20 ऑफ योर हिस्ट्री. ओके, उसको भी एक साथ देखो, क्योंकि इसमें ठीक से विजिबल हो रहा होगा, नहीं हो रहा होगा आपको. अब बुक से भी देखो, मैं जो बोल रही हूँ उसको अच्छे से ध्यान से आप लोग बुक के साथ मिला के देखो. तो ग्रीन कलर का जो है वो मेसोलिथिक साइड से, रेड कलर का छोटा छोटा जो डॉट है वो है आपका पेलोलिथिक साइड्स, और न्योलिथिक साइड्स जो पर्पल कलर का ट्रायंगुलर शेप है वो है न्योलिथिक साइड्स, और जो ऑरेंज कलर या फिर येलो कलर जैसे दिख रहा है वो है वो रेक्टेंगुलर शेप है, वो है मेगालिथिक साइड्स. सो अब देखो, जो न्योलिथिक साइड्स है, न्योलिथिक साइड से यहाँ पे देखो, ये है इंडिया में जम्मू कश्मीर में है बुर्जहम है, ये जम्मू कश्मीर में है. मेहरगा है जो है इंडियन का सब कंटिनेंट, वो अभी तो इंडिया में नहीं है, लेकिन उस समय वो इंडिया के अंडर में ही आ रहा था. तो ये है मेहरगा. वहाँ पे क्या विलेज हर रेक्टेंगुलर हाउसेस, मीन्स वहाँ पे रेक्टेंगुलर हाउसेस सब मिल रहा था. मड से जो ब्रिक्स सब यहाँ पे कुछ कुछ मिला था. आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड दिस साइट्स. मेहरगा is this Neolithic sites, Burjaham is this Neolithic sites. Now चिरांद in your बिहार में जो चिरांद है उसमें भी वहाँ पे भी न्योलिथिक साइट्स मिला है. सो फिर कोढ़ीवा में भी मिला है. ये है आपका उत्तर प्रदेश में, यहाँ पे भी न्योलिथिक साइट्स मिला है. तो ये सब में कुछ कुछ मिला है, जैसे हम डिस्कशन करेंगे कि क्या क्या कहाँ पे मिला है. सो हियर लेट्स स्टार्ट फ्रॉम मेहरगा. मेहरगा में क्या मिला है, वो है पाकिस्तान में, अभी है वो पाकिस्तान में नियर बोलन पास में है. तो इसमें मेहरगा में मिला है आपका व्हीट, बार्ली, कॉटन, और क्या मिला है कैटल, सीप, गोट्स, ये सब जो वो रख रहे थे क्या डोमेस्टिक एनिमल्स वो कर रहे थे, वो बुफेलोस. तो ये सब मेहरगा में वो सब साइट्स में मिला है, जैसे बहुत आर्कियोलॉजिस्ट सर्च किए हैं तो उनको मिला है. सो नेक्स्ट इज योर बुर्जोहम. बुर्जोहम जो है वो है जम्मू कश्मीर में. तो बुर्जोहम में उनको क्या मिला है, थैच्ड रूफ्स मिला है. घर कैसे बना रहे थे उस समय वो सब का कुछ कुछ अंश उनको मिला है. ओवन्स मिला है, आस, चारकोल्स, ये सब मिला है. तो इससे ये पता चलता है कि मीन्स पिट्स के इनसाइड में भी मिला है और आउटसाइड भी मिला है, मतलब घर के अंदर भी मिला है और घर के बाहर भी मिला है. मतलब इससे ये पता चल रहा था कि वो इंडोर भी कुक कर रहे थे और आउटडोर भी कुक कर रहे थे. तो ये हो गया आपका मेहरगा एंड बुर्जो हम डिस्कशन कर लिए. नेक्स्ट आपका है दाउजली हेडिंग इन आसाम. दिस इज योर दाउजली हेडिंग इन आसाम. यहाँ पे हम क्या मिला था, ये दाउजली हेडिंग में मिला था सेरियल्स मिला था, याम्स मिला था, बर्निंग फॉरेस्ट का कुछ मिला था. तो ये सब में बहुत कुछ मिला है, जैसे मेहरगा, बुर्जोहम, चिरांद, दाउजली हेडिंग में बहुत कुछ साइट्स मिला है न्योलिथिक साइट्स में. और जो टूल्स सब हम डिस्कशन कर चुके हैं, माइक्रोलिथ डिस्कशन कर चुके हैं, ये सब भी मिला है. तो ये सब
फूड प्रिपरेशन के लिए जो ज़रूरत हो रहा था, जो टूल्स ज़रूरत हो रहा था, वो सब मिला था। तो पॉटरी जो सब बना रहे थे, पॉटर्स व्हील्स बनाए थे, व्हील्स का भी कुछ मिला है। सेप्ट विथ टूल्स, रैप्ड कॉर्ड्स मिला है, जैसे कॉर्ड जो पॉट मेकिंग हो रहा था, कॉर्ड दे के वो बना रहे थे ना, तो वो कॉर्ड सब भी मिला है। तो मेहरगा बुर्जुहम, ये सब जो साइट्स है वो सब नियोलिथिक साइट्स है। ये सब साइट्स में जो उनका बरीड डेड जो कर रहे थे, डेड को बरीड कर रहे थे, वो सब मिला है उनको। डोमेस्टिक एनिमल्स का भी कुछ मिला है। सो ये सब, इससे ये हमें पता चल रहा था कि एनिमल्स कुड हैव बीन मींट टू सर्व फूड फॉर द डेड। नेक्स्ट यहाँ पे और कुछ है, ये देखो, टिकलकोटा जो कि कर्नाटक में है, और पय्यमपल्ली ये भी। ये सब जो है नियोलिथिक साइट्स इन द इंडियन सब कंटिनेंट। सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल ऑफ योर और थर्ड चैप्टर, दैट फर्स्ट फार्मर्स एंड हेडर्स। तो स्टूडेंट्स, थैंक यू। तो आप लोग बुक भी अच्छे से पढ़ो, ये जो वीडियोस हैं उसको भी अच्छे से देखो, बुक के साथ मिलाओ, अच्छे से समझने की कोशिश करो। और कुछ अगर आपको डाउट हो रहा है तो आप लोग पूछो और अच्छे से उसको समझने की कोशिश करो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। एंड आपका जो क्वेश्चन आंसर है पूरा लेसन उसको कंप्लीट करो। ओके स्टूडेंट, एट लास्ट, थैंक यू, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय बाय।